Okay, so today we are going to study the rights in the Indian Constitution. So we studied about substantive provisions of Constitution कि संविधान ने बेसिकली मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि क्या दिया है लोगों को, क्योंकि आपने पढ़ा कि कोई भी संविधान तभी सफल होता है जब वो सभी लोगों को कुछ ना कुछ देता है अपने को मानने के लिए। नहीं तो कोई क्यों मानेगा? जब तक कुछ फायदा ना हो लोग क्यों वो काम करेंगे? So why should the people obey the constitution if it doesn't give them something? It otherwise it will be useless. Why should they bother to respect and to obey the constitution if they are not getting something? If a father is not supporting his child, why will he care for his father? Can you understand? A human being, any person, any creature, if he is not getting benefit from something, why should he care about it? So similarly, the constitution, which is a set of rules and regulations, so human beings, they do not want to follow any rules or regulations. So why should they bother to follow some rules and respect those values and regulations until they are getting something? So this is the first lollipop that people are being given in the constitution. That is the rights. Okay, these will be your rights. Now that we are going to study what are the rights given to the Indian citizens or the people who are living in India in the constitution. See, introduction. A constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. We have already studied that constitution is not only the rules and the regulations and the system of government and the relationship between the different parts, different organs of government. As we studied in the last chapter, the constitution is a document that sets limit on the powers of government and ensures a democratic system in which the persons enjoy certain rights. Constitution is a document that sets limits on the powers of government. यह पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के शक्तियों पर एक रोक, एक सीमा लगाता है कि दिस इज योर पावर, यू हैव टू एक्ट विद इन दिस, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। आपको लोगों के लिए ये करने का अधिकार, ये नहीं कि अब लोगों को आप जो है अपने हिसाब से उठाइए बैठाइए और सब चीज़ कहिए जैसे हम कहें वैसे करिए। समझ गए? सरकार भी अपने कायदे में रहे, अपने लिमिट्स में रहे। ये कौन कहता है? ये संविधान बताता है। तो ये सरकार के भी लिमिट्स को डिफाइन करता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जब सरकार अपने कायदे में रहेगी तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जहां सरकार अपनी मनमर्जी नहीं बल्कि लोगों के विचार विमर्श से हर काम करेगी, लोगों की राय सलाह लेते हुए उनके फायदे के लिए काम करेगी। दैट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन्स एंजॉय सर्टेन राइट्स। ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लोगों को कुछ राइट्स मिलेंगे कि हाँ वी हैव गॉट सर्टेन राइट्स, वी आर नॉट टोटल सब्जेक्ट्स कि हाँ भाई बस हम गुलामों की तरह, जैसा फ्यूडल एज में होता था कि राजा के पास शक्तियां होती थी और बाकी सब उसके प्रजा है, जो राजा कहेगा वो उनको करना है। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट to enable, to ensure a democratic system in which all people enjoy certain rights. बैठा दिमाग में? In this chapter we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. So you already have some idea what rights we have. There are two types of rights that we have. One is the fundamental rights and other is the directive principles of state policy.
So we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Now, fundamental rights are in which part? Part of the Constitution. What is the first part? What is the first part? सब भूल रहे हैं. First part, India and its union and its territory. What is part 2? First part is territory, name and territory of the union. Part 2, citizenship. सब भूल गए हैं. Part 3, after citizenship comes fundamental rights. Citizenship है तो अब किसको क्या rights होंगे citizens को, वो है part 3. What is part 4? Part 4 is DPSP. What is part 4A? Duty. Fundamental duties. What is part 5? उसके बाद executive. The union. Part 5 is the union. Union में first chapter है executive. Second chapter is the legislature, that is parliament. So part 5 is the union. Part 6 is states. सब भूल नहीं जाए तुरंत, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ पढ़ा हुआ कि भूल रहे हैं, तो रिवाइज करना जरूरी है. So here it is saying part 3 of the Constitution of India. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limits on these rights. Part 3 जो है तीसरा भाग जो है संविधान का, जिसमें कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं और उन पर क्या लिमिट्स होगा. फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर नॉट टोटलिटेरियन, कोई अब उस पर कोई लिमिट नहीं है. नहीं, फंडामेंटल राइट्स दो दे आर फंडामेंटल मीन्स दे शैल बी प्रिजर्व्ड in almost all conditions, but there are also certain limits on these rights in special conditions, in some emergency conditions. So part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limits on these rights. In the past 6 decades, देखिए यहां तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें फंडामेंटल राइट्स लिख दिया गया. अब आगे क्या हुआ? इन द पास्ट 6 decades द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज्ड. क्या हुआ है? जो राइट्स का स्कोप है, स्कोप का मतलब है द एरिया इन विच दे विल बी अप्लाइड. स्कोप जैसे हम कहते हैं टेलीस्कोप, बाइस्कोप, तो स्कोप मीन्स द एरिया ऑफ विजन. समझ गए? एरिया ऑफ विजन जो होता है, जैसे आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो आपको जितना उसका एरिया उतना ही एरिया का दिखता है, तो दैट एरिया ऑफ विजन इज कॉल्ड स्कोप. सो द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज्ड, यानी पहले जो लिखा गया था और उसके बाद 60 साल जो हुआ, उसमें जो राइट्स का जिस एरिया में वो अप्लाई होता था वो अब बदला है. एरिया ऑफ विजन, हाँ, एरिया ऑफ एप्लीकेशन या एरिया ऑफ विजन, विजन/एप्लीकेशन. So the scope of rights has changed in the past 6 decades, and in some respects expanded. और कुछ मामलों में कह सकते हैं कि वो फैला है ज्यादा. जो स्कोप पहले लिमिटेड था वो स्कोप अब फैला है, फैल गया है, एक्सपैंडेड. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you would know what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India. तो ये सब पढ़ चुके हैं आप. What are the various, क्या है अलग अलग फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताए गए हैं. हाउ these rights are protected, इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, कैसे उनकी सुरक्षा की गई है कि कोई उसे छीन न ले, कोई उसका वायलेशन न करे. How they have been protected. What role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights.
जुडिशरी ने इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और इंटरप्रेट यानी उसको समझाने, उसको व्याख्या करने में क्या रोल प्ले किया है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या फर्क है। तो ये ब्रॉड इश्यूज को हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं और उन राइट्स को फिर कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि राइट्स खाली देने से नहीं होता है। इस दुनिया की सच्चाई ये है कि हर कोई किसी के राइट को वायलेट करना चाहता है, उसके राइट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। ठीक है, तो हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड, कैसे उनकी सुरक्षा भी की गई है कि उसको मिले। देन व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स। जुडिशरी ने किस तरह इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको कोर्ट्स ने, न्यायालय ने, जुडिशरी ने कैसे प्रोटेक्ट किया और कैसे उनको और इंटरप्रेट किया है बदलते सिचुएशन में या एक्चुअल सिचुएशन में, कैसे उसको समझाया, किस तरह से व्याख्या की है उसकी, इंटरप्रेट किया है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या फर्क है। ओके, नाउ फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, so we are taking a small case here and we are trying to understand what is the importance of rights. In 1982, during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. यहाँ एक केस आपके सामने रखा गया है। 1982 में एशियन गेम्स जो है वो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुए थे और वही साल था कि इंडिया में कलर टेलीविजन आया था। उससे पहले यहाँ कलर ब्रॉडकास्ट नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। तो ये एशियाड उसको कहते थे, शॉर्ट में एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता था। तो ये एशियन गेम्स का समय था कि जब, क्योंकि गेम्स का समय था, लोगों की रुचि होती थी गेम्स को देखने में, तो उसी समय जो है टेलीविज़न जो था हमारे यहाँ, जो हमारा टेलीविज़न सिस्टम था, दूरदर्शन नेटवर्क, दैट स्विच्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, and that was the first time the color transmission was done in 1982. So in 1982 during the construction work for Asian Games, क्योंकि एशियन गेम्स जैसे जब भी होते हैं, जैसे बाद में कॉमनवेल्थ हुए यहाँ पे, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ जो है स्टे करने के लिए हॉस्टल्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ ट्रैक्स वगैरह, जो भी कुछ ज़रूरत होती है वो होस्ट करने के लिए गेम्स को, वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क में सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने काम दिया कि हाँ इसको तैयार करना है। These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadiums. उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों के जो है बहुत ही गरीब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनको फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स बनाने के लिए दिल्ली में, ताकि लोगों की भीड़ आएगी जाएगी, देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, पर्सनली जो सामने से देखते हैं स्टेडियम में, और लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर वैसे तो टेलीविज़न का तो मैंने बताया ही। तो फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स को बनाने के लिए जो है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों से गरीब मजदूरों को काम पर रखा। These workers were kept in poor working conditions and were paid less than the minimum wages decided by the government. इन वर्कर्स को बहुत ही जो है बुरे परिस्थितियों में, काम के परिस्थितियों में रखा जाता था और उनको जो है जो मिनिमम वेजेस तय था सरकार के द्वारा कि इससे कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता है, उससे भी कम मजदूरी पर उनसे काम लिया गया। A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. तो कुछ सोशल साइंटिस्ट जो समाज विज्ञानी थे, समाजशास्त्र की स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सोशल साइंटिस्ट दे स्टडीड देयर कंडीशन ऑफ लिविंग, कि किस तरह उनको वहाँ रखा जा रहा था, किस हालत में उनसे काम कराया जा रहा था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डाला कि दिस इज रॉन्ग।
They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amounts to begar or forced labor, which is a violation of the fundamental right against exploitation. ठीक है? उन्होंने ये दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि किसी व्यक्ति को उसके जो मिनिमम वेज सरकार द्वारा तय है उससे कम पैसे, उससे कम पारिश्रमिक मजदूरी पर काम कराना, ये उसका शोषण है, एक तरह से उससे बेगार कराना है या उससे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराने की तरह है। और ये जो उसको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसका वायलेशन है। फंडामेंटल राइट दिया गया है कि किसी व्यक्ति का कोई शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो या सरकार हो। तो जब कोई लोग उससे मिनिमम वेजेस से कम वेज पर काम करा रहे हैं, इसका मतलब ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बेगार means क्या? बेगार मतलब, बेगार नहीं जानते हैं आप लोग? बेगर। बेगर नहीं, बेगार है। बेगर नहीं, बेगर का स्पेलिंग जी एक और होता है। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पे। अच्छा। बेगारी कहते हैं कि बिना पैसे दिए काम कराना किसी से। वर्क विदाउट पे। यस। तो कल का यूट्यूब पे नहीं डाले थे? नहीं डला है? नहीं, पर हम देखे थे तो कहाँ? अच्छा, अपलोड कर दिए थे। भारत का फोन आ गया, फोन रिकॉर्डिंग उधर चल जाएगी बात। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेस सीरीज भी शुरू किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 75 ईयर्स ऑन रीशेपिंग द रिपब्लिक। ठीक है, कैसे 75 सालों में हमने उसको एक नया आकार दिया है। और उसको देखिए केस बाय केस 51 से उठाया है, जो शंकरी प्रसाद केस था वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जमींदारी सिस्टम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आपने देखा है डिबेट में उसको, जब जमींदारी सिस्टम को लेके बहस हुई थी 51 में, फर्स्ट अमेंडमेंट में।
तो उस पर ये बहुत अच्छा ये आर्टिकल सीरीज शुरू किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, इसको फॉलो करिएगा। पुराना होगा तो हाँ, इंडियन एक्सप्रेस पूरा में पिछले अगर 75 सालों में कैसे ये हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इन अ न्यू नेशन व्हेन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, इसमें फंडामेंटल राइट्स पर जो केस चला भाई, उसको अमेंडमेंट को लेकर और जमींदारी राइट्स को लेकर, ठीक है, इसको पढ़िएगा। तो ये आपको देखिए बढ़िया है, एक्सप्रेस ये सब कुछ कुछ बहुत इनिशिएटिव लेता है, नए नए आर्टिकल तरह का ये चीज़ शुरू करता है। कल अपनी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं होती। हम नहीं भेजे थे कि पहले ही आपको 2-3 था, भेज देंगे उसको, ये हम कह कि पढ़िएगा तब ना। हाँ खैर, तो यहाँ हम लोग आते हैं कि हमने ये देखा कि जैसे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 82 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जब एक बुरी हालत में रखा जा रहा था और उनको अपने प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेज जो सरकार द्वारा तय किया गया है कि ये इससे कम मजदूरी देश में किसी को नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह के काम के लिए, तो उससे भी कम वेजेस पर काम कराया जा रहा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है कुछ सोशल साइंटिस्ट ने पिटिशन किया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस प्ली and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work. सुप्रीम कोर्ट ना, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट किया था और सरकार को आदेश दिया कि जो हजारों वर्कर्स को जो वहाँ जो है वो वेज दिया जा रहा है, वो उनको मिनिमम वेज जो है वही दिया जाए, उससे कम नहीं दिया जाए, ये सुनिश्चित करे सरकार। तो ये देखिए, ये जो इशू है ये कॉन्स्टेंटली परवेसिव इशू है हमारे देश का या दुनिया भर का। ये मजदूरी जो है, उचित मजदूरी का मामला, ये दुनिया भर का शिकायत। जो काम करने कराने वाला होता है वो सोचता है कि कम मजदूरी पर काम करा ले, और जो काम करने वाला है वो सोचता है कि भाई हमें अपने काम का सही मुआवजा मिलना चाहिए, सही मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है। इसी पर दुनिया का पूरा समझिए आज का मोह माया टिका। बिकॉज after the industrial revolution the world is almost divided in the capitalists and workers, यानी कि एक तरफ जो मालिक हैं और एक तरफ जो वर्कर्स हैं। इसी तरह से दुनिया का चल रहा है, हर कोई किसी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है। तो कोई वहां पर ओनर है और कोई वहां पर वर्कर है या मैनेजर वर्कर जो समझिए। तो हर जगह ये इशू है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है कि हम लोग नहीं समझते। हमारी मेड है, हमसे कह रही कि देखिए कल वहां गए काम करने, अब वहां वो कह दी कि ये कर दो, उसमें मुझे 1 घंटा लग गया। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ हर टाइम, विच इज दैट इज द टाइम शी इज यूजिंग टू अर्न मनी, and people are not compensating for that time. She told कि मैंने एक जगह खाना छोड़ दिया इसलिए बनाना, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा समय वाला ले लेते थे। हम कहे भाई अगर कोई समय लेता है तो उसे उसका मुआवजा देना चाहिए कि ठीक है आपसे हम 1 घंटा एडिशनल वर्क ले रहे हैं, तो उसका आपको हम ये क्यों सोच है कि भाई हम काम करा लें और उसका पैसा नहीं दें, या जो काम कर रहा है उसका उचित मुआवजा नहीं दें। तो दिस इज द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रगल आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यही यहां पर है कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और वर्कर्स हैं, उनके बीच में यही समस्या रहता है कि वो चाहते हैं कम पैसे पर काम करा ले। अब दोनों के बीच में इश्यूज रहते हैं, वो कहते हैं बढ़िया से काम नहीं करते, इनको हम उचित क्यों दें, वो कहता है कि पैसा नहीं देता इसलिए हम नहीं करते हैं, ठीक है। I talked to a person who was working in Delhi. I asked him how much you get. He said, sir, I get 10,000. I said, are you satisfied? Do you work? Do you like that? He said, I do not like. I do not want to work because they are not giving me more money. So I also do not work, and I am thinking of leaving that and going to some other place. There they make us work hard, but they give us more money also. Okay, so here it is like exploitation कि someone is working but he is not getting his due wages.
So this is the violation of the fundamental right, that is right against exploitation. किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता है इस भारत देश में, and it is wrong. Anyone can go to the court against violation of his fundamental right. तो यहाँ पर देखिए कोई थर्ड पार्टी जो सोशल साइंटिस्ट गए थे रिसर्च करने के लिए, उन्होंने प्ली फाइल किया, पिटिशन फाइल किया कि इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो तय है मजदूरी मिनिमम उससे भी कम मजदूरी पर काम लिया जा रहा है. बट आई विल टेल यू ऑल्सो दिस, दैट दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. This is a very common practice. Most of the contractual work, the wage offered is less than the minimum wage. जहां भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होता है, ठेके पर काम होता है, वहां जो मिनिमम सैलरी होता है उससे कम ही दिया जाता है, और चल रहा है ये खुलेआम, किसी को फर्क नहीं पड़ता है. नो वन केयर्स. बट द थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ नरेगा. नरेगा से बहुत बदलाव आया, एंड दैट वाज डन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. नरेगा लाने से द मिनिमम वेजेस फॉर वाज फिक्स्ड एंड मिनिमम वर्क डेज वर फिक्स्ड, कि हाँ आपको इतने दिन का रोजगार मिलेगा. दैट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, वर्कर्स, विलेजर्स. दे आर एश्योर्ड ऑफ सम बेसिक इनकम, लेकिन उसको भी अब बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको लगाने के चक्कर में है ठिकाने, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई नरेगा आने से ये सब आलसी हो गए हैं, पैसा मिल जा रहा है ज़्यादा तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, और अपना भाव बढ़ा दिए हैं. जहां लोगों को मजदूरों की ज़रूरत होती थी काम करने के लिए, वहां उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग अब मजदूरी की तलाश में बाहर नहीं जा रहे हैं. उनको घर बैठे अपने, क्योंकि कानून बन गया ना, तो कानून तो हर जगह है, वो गाँव में भी है, वो गाँव में ही अपने उनको उतना पैसा मिल जा रहा है, वो शहर किस लिए आएंगे. गांव और शहर का आपको पता है एक्सपेंस लेवल कितना डिफरेंट होता है. गांव जो शहर में आपको 10 रुपए में चीज मिलेगी, गांव में आपको वो 2 रुपए 3 रुपए मिल जाएगी. तो गांव में 100 रुपया कमा रहा है, वो शहर के 500 के बराबर. तो कोई उसको अगर 100 रुपया 200 रुपया गांव में ही मिल रहा है, तो वो क्यों 500 के चक्कर में जाएगा शहर में. नहीं जा रहे हैं लोग, और इसके कारण जो जितने भी ये स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऊपर और चले जाइए जहाँ भी, तो जहाँ की बहुत मजदूरों की, एग्रीकल्चरल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी खेत वगैरह में काम करने के लिए या इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, वहाँ भारी कमी हो रही है लेबर की. दे आर लुकिंग बट दे आर नॉट गेटिंग लेबर, एंड द लेबर वेजेस हैव गॉन हाई. उसके कारण भी महंगाई बढ़ी है, because the cost of production has also gone high. आज आपके इंडिया के लोगों को विदेश में इतना किस लिए नौकरी मिल रहा है? बिकॉज दे आर चीप लेबर. भाई वहां वो यूएस के आदमी को रखेगा, एक इंजीनियर यूएस का रखेगा, उसको $10,000 पर देना पड़ेगा. भारत का इंजीनियर वो 2 ही 3 हजार पर डॉलर पर काम करने के लिए तैयार है, और उससे ज्यादा बढ़िया मेहनत से काम भी करता है. इसीलिए भारत, चीन, इन सब के लोगों को इतना ज़्यादा नौकरी वहाँ विदेशों में मिल रहा है. जैसे बिहार के लोगों का इंडिया में हालत है कि बिहार के लोग हर जगह जाके बहुत ही मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार है, तो बिहार के लोग काम मिल रहा है, और इसके कारण फिर वहाँ झगड़ा झंझट हो रहा है कि बिहार के लोगों को सब काम मिल जा रहा है. समझ रहे हैं? सो खैर, आई टोल्ड यू सम इश्यूज, बट दिस इज रिगार्डिंग दैट. जैसे कि अभी अनइक्वल पे की बात आती है कि भाई महिलाओं को कम पैसा देने की कोशिश करते हैं लोग, कि काम अगर हो रहा है कहीं तो वो पुरुषों को ज़्यादा पैसा देंगे, महिलाओं को कम, या बच्चों को कम. भाई आप काम ले रहे हैं तो वो तो वही काम है. ठीक है, तो खैर दोनों साइड के ग्रीवेंसेस हैं. वो काम वाले कहते हैं कि महिलाएं ठीक से काम करती नहीं है मन लगा के, और महिलाओं का शिकायत है कि भाई हमें पैसा नहीं देते हैं. दोनों तरफ से दिक्कत है. मैंने दोनों साइड देखा है. मैंने भी देखा है कि महिलाएं किस तरह काम नहीं कर रही हैं. दिल्ली में बस कंडक्टर से महिलाओं को रखा गया. पहले पहल गवर्नमेंट में बस कंडक्टर्स में रखा गया था महिलाओं को, कि उनका काम सिर्फ था बैठ के टिकट काटना.
तो मैंने बहुत बार देखा कि भाई बैठ के अपना फ़ोन पर लगी हुई हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, टिकट काटने से कोई मतलब नहीं। जो कोई मांग रहा है खुद से टिकट तो दे रही हैं, नहीं मांग रहा है तो भाई अपना फ़ोन पर लगी हुई हैं गपशप देने में। और कई बार उनको मेल जो है चेकर्स वो कई बार इस पर डांटते भी थे, क्योंकि वहाँ चेकिंग टीम भी चलती है लगातार। तो ये चीज़ें देखा है कि कहीं ना कहीं, लेकिन ठीक है, बात है कि कोई भी चेंज जो होता है उसमें वो थोड़ा सा शुरू में उसको सेट होने में समय लगता है, ठीक है। तो हर किसी को अपने एक वर्क कल्चर में आने में थोड़ा सा समय लगता है। इस बात को हम प्रेजुडिस नहीं हो सकते हैं इससे कि भाई महिलाओं को कंडक्टर में नहीं रखना चाहिए था, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, तुरंत ज्वाइन करते ही या मतलब ये सिस्टम स्टार्ट होते ही हम एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल प्रोफेशनली वो काम करने लगे पुरुषों की तरह, तो वो भी नहीं सही है। खैर चलिए, तो मैंने यहाँ एक जो है केस स्टडी यहाँ आपको दिखाया। उसके बाद देखते हैं दूसरा केस है, मचल लालुंग was 23 when he was arrested। मचल लालुंग कोई आदमी जो 23 साल का था जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अ रेसिडेंट ऑफ शुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम के मोरीगांव वहाँ जिला है, मोरीगांव जिले का शुबुरी विलेज का वो आदमी है रहने वाला मचल लालुंग। उसको जब 23 साल का था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मचल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवस इंजरी। मचल पर जो है ये इल्ज़ाम था कि उसने किसी को जो है बहुत चोट पहुंचाई और इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। He was found mentally too unstable to stand trial and was sent to as under trial to Lokpriya Gopinath Bordoloi Mental Hospital in Tezpur for treatment। जब मचल लालू को पर केस चलाया जा रहा था मुकदमा, तो उसको पाया गया कि वो दिमागी रूप से सही नहीं है और वो गवाह वगैरह देने या ठीक से केस मुकदमे की कार्रवाई अटेंड करने लायक नहीं है। तो उसको जो है एक मेंटल हॉस्पिटल जो तेजपुर में है वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ये इंडिया में दो ही जगह मेंटल हॉस्पिटल है कि बहुत जगह है? नहीं नहीं, मेंटल हॉस्पिटल बहुत जगह है, दो ही जगह क्यों? मेंटल असाइलम दो जगह है। अब बहुत हो गए, पहले रांची और आगरा का फेमस था, ठीक है। बाकी अब जो है वो बहुत पहले की बात है, बहुत जगह है। Machal was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 67 and 96 that he was fit to stand trial, but no one paid any attention। Machal Lalung remained in judicial custody। ये देखिए कब की बात है कि जब वो 23 साल का था तब वो अरेस्ट हुआ था और उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उसका इलाज हो गया और डॉक्टरों ने 2 बार जेल अधिकारियों को चिट्ठी ली गई, एक बार 67 में और एक उसके 30 साल बाद 96 कि ये जो है अब ये सही है अपना ट्रायल के लिए, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया और उतने साल वो उसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है, ठीक है। जब उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है और वो एक तरह से कोर्ट के उसमें रहता है, निगरानी में रहता है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। एक होता है पुलिस कस्टडी, जब पुलिस के पास होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है रख के, उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है। और एक होता है जुडिशियल कस्टडी, जब वो कोर्ट के निगरानी में रहता है। तो ये समझिए कि लगभग 30 से 35 साल वो जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रह गया बिना कोई मुकदमे के। मुकदमा चला नहीं सकता था है, बाहर आ जा नहीं सकता था। कैसे आ जाएगा? जब वो उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा हुआ है वो ठीक हो गया वहां, लेकिन जब उस पर अब आगे मुकदमे की कार्रवाई चलेगी तब ना उसको फ्री किया जाएगा, नहीं तो वो कस्टडी में है, निगरानी में है। तो वो 30-32 साल बिना मुकदमे बिना कोई सुनवाई के वैसे ही जुडिशियल कस्टडी में रह गया। मचल लालुंग was released in July 2005। He was 77 then। 55 साल लगभग जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रह गया। 55 साल यानी जिंदगी भर वो जुडिशियल। 2005 में उसको छोड़ा गया
He spent 54 years under custody during which his case never came up for hearing, जिसमें कभी उसका मुकदमा नहीं हुआ. He was freed when a team appointed by National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trials in the state. उसको आज़ाद किया गया जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसने उसकी एक टीम वहां जब गई जांच करने के लिए लोगों की अंडर ट्रायल्स जिन पर मुकदमा चल रहा था उन पर, वहां गई और उसने हालात देखा कि ये 55 साल 54 साल से यहीं है बिना मुकदमे के, तब उसके जो है उस पर जो है रिपोर्ट पर उसको फ्री किया गया. कैसे फ्री किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर क्या, उसने लिखा कोर्ट को, जब तब कोर्ट ने ध्यान दिया तो उसको फ्री किया कि भाई इसने इस पर कभी मुकदमा चला नहीं और ये जो है अब उसको पीरियड ही खत्म हो चुका है उसका जो. अब तक है ऊपर ही चले गए होंगे. हाँ. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि रियल स्टोरी होता है ना. इट इज रियल स्टोरी. ये आपको कहीं से उठा के लिख देगा एनसीईआरटी में. रियल स्टोरी कहता है. Mitchell's entire life was wasted because a proper trial against him never took place. अब ये तो खैर कहने की बात है कि वेस्ट हुआ कि क्या हुआ, वहां भी आराम से ही रह रहा होगा जो भी है. But anyway, Mitchell's entire life was wasted because a proper trial against him never took place. Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर व्यक्ति को अधिकार, फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको तेजी से उसका केस मुकदमे की सुनवाई किया जाए, क्योंकि भाई नहीं तो आप उसको लिबर्टी कहाँ दे रहे हैं. 55 साल कहाँ लिबर्टी था उसको, कहाँ आजादी था उसको 55 साल. किसी भी व्यक्ति को आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है. अब आप पर केस मुकदमा चल रहा है, आप जुडिशियल कस्टडी में पता चला 1 साल 2 साल खींच दिया आपको, तो 2 साल आप आज़ाद कहाँ रहे. आपको तो आज़ादी का अधिकार था. दैट इज अ फंडामेंटल राइट. समझ में आ रहा है बात. तो दैट इज दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, कि जल्दी से जल्दी उसका मुकदमा सुनवाई हो और उचित तरीके से सुनवाई हो, क्योंकि नहीं तो उसका आज़ादी चला जाएगा उतने पीरियड के लिए जो कि उसका फंडामेंटल राइट दिया गया है. Mitchell's case shows that what happens when rights granted by the Constitution are not available in practice. Mitchell का केस हमें ये दिखाता है कि क्या होता है जब राइट्स दिए जाते हैं संविधान के द्वारा, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है. कि उसको, उस मचल लालू को भी आज़ादी का अधिकार था, लेकिन 55 साल उसका जीवन का बड़ा हिस्सा जो है वो जुडिशियल कस्टडी में ही गुजार दिया बिना कोई मुकदमे के. तो मुकदमा क्यों चला, क्यों नहीं, तो मसन क्यों नहीं बोला. अधिकारियों का लापरवाही. और क्या, बोलता नहीं कौन मसल. अरे सबका लापरवाही है. देखिए बोला ना कि 2 बार चिट्ठी लिखा, एक बार 67 में लिखा और उसके बाद फिर 96 में. मैंने 30 साल तक बीच में इन लोगों को भी कोई फर्क नहीं छोड़ दिया. सिस्टम की लापरवाही इसी को कहते हैं, समझिए. किसी को कोई फर्क नहीं, किसी को क्या मतलब है. सिचुएशन में क्या किया जा सकता है. सिस्टम में सब लापरवाह निकल रहा है. सिस्टम में लापरवाह वही ना मोदी कर रहे हैं कि सबको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं कि अपना ड्यूटी ठीक से कीजिए. जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी था उसको वो भूल गया, उसको फिर किसी को फुर्सत नहीं, दूसरे काम में लग गया, या जो भी है. मतलब इस सिस्टम का ये समझिए फॉल्ट है कि उसका लिखा तो है कि 67 में चिट्ठी लिखा गया, फिर 96 में 30 साल बाद फिर चिट्ठी लिखा गया, फिर भी कोई किसी के कान पर जू नहीं रहेगा कि क्या करना है. फाइनली जो है जब वो जुलाई 2005 में जब NHRC का टीम वहाँ गया और जांच के लिए, तब वहाँ जब उन्होंने देखा कि आदमी बताइए 55 साल से यहाँ पड़ा हुआ है बिना कोई मुकदमे के, तब उसने जब कार्रवाई के लिए आगे कोर्ट को भेजा, कोर्ट ने उसके फिर बात पर उसको फ्री कर दिया कि भाई उतना तो वैसे ही सजा झेल गया, उसको तो कंपेंसेशन देना चाहिए था. वो बेवकूफ़ रहा होगा
अब पता नहीं इस केस में क्या हुआ। उसको तो केस करना चाहिए सरकार के खिलाफ कि हमको 55 साल जेल में रख लिया, उसका मुआवजा दे हमको। तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है कि भाई आप हमको 55 साल रख लिए कैद में, उसका जीवन मेरा बर्बाद कर दिया आप, तो ऐसे ही उसका मुआवजा चाहिए हमको। सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रही है ये कार्टून के माध्यम से कि व्हाट इफ मचल वॉज ए रिच एंड पावरफुल मैन। अगर मचल एक अमीर और शक्तिशाली आदमी होता तब क्या होता। व्हाट इफ दोज वर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स वर इंजीनियर्स। जो वहां मजदूर थे जिनको वो कम वेज दे रहा था, अगर वो इंजीनियर्स होते तो क्या वो ऐसे वो रख पाता उनको कम वेजेस पर? क्या वो पढ़े लिखे लोग रहते तो उनको रख पाता? नहीं नहीं नहीं, आज के डेट तो वो अनपढ़े हैं जो इंजीनियर नाम के हैं वो। तो क्या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जगह वो इंजीनियर्स होते तो क्या ऐसा उनके साथ होता? वुड देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड? क्या उनके राइट्स को वायलेट किया जा सकता था? नहीं। तो राइट्स को वायलेशन का जो मेजर रीजन है इस दुनिया में, दैट इज इग्नोरेंस, अज्ञानता। ignorance, we do not know. And why we do not know? Because we are not alert, we are not conscious. जब उसको पढ़ाया जा रहा था, स्कूल भेजा तो पढ़ा नहीं, उसको क्या पता रहेगा कि मेरा क्या अधिकार है। फिर वो जैसे उसके साथ किया जा रहा है उसको लगता है यही सही है, यही दुनिया का दस्तूर है। एक बहुत फेमस है एक बुक जो है, रशिया का ऑथर जो है चेखोव की बुक है। उसमें है कि एक आदमी पर केस चल रहा होता है। केस इसलिए चल रहा होता है कि वो उसने रेलवे ट्रैक का जो फिशिंग बोल्ट बोलते हैं, फिश नट, जो ट्रैक्स को जोड़ने के लिए काम आता है, ट्रैक्स जहाँ जोड़े जाते हैं, रेलवे ट्रैक जहाँ जुड़ता है वहाँ उसको कसा गया होता है, उसको फिश नट बोलते हैं। दोनों तरफ से लगा के, हाँ, उससे कसा हुआ रहता है, हाँ। तो वो उसने नट खोल लिया था और उस नट को खोल के वो मछली मारने के लिए उसको अपना उसमें रस्सी में बांध के फंसाने के लिए हुक की तरह यूज कर रहा था। उसको खोलते हुए पकड़ लिया गया था तो उसी पर केस चल रहा था। तो वो बोलता है कि भाई मुझे क्यों यहाँ पकड़ के ले आए हो, मैंने क्या किया है गलत? अरे बताओ, मैं एक जो वो तो हर गांव का आदमी यही करता है, वो नट में जो है बहुत अच्छे से मछली फंसती है, तो मैं भी तो नट खोल रहा था, हर कोई करता है, मुझे यहाँ क्यों ले आए? वकील कहता है कि तुम समझते हो कितना बड़ा गुनाह तुम किए हो, तुम्हारे नट खोलने से ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोग मारे जाते, कितना बड़ा अपराध तुम किए हो। अपराध? गांव का हर आदमी तो यही करता है। गांव का हर आदमी तो बोलता है कि ट्रेन का जो वो नट है वो बहुत बढ़िया काम करता है, उसमें मछली बहुत आराम से फंसती है और बिल्कुल वो नीचे तक चली जाती है, हल्का फुल्का कोई चीज नहीं जाता है। तो हर आदमी तो यही करता है, हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं, इसलिए हम भी तो वही कर रहे थे। तो वकील और दूसरे लोग को कितना ही समझाने पर कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो ये उस नॉवेल में दिखाया गया कि किस तरह दैट हिज इग्नोरेंस, वो उसने जो वो जो अनपढ़ होता है गांव का, वो तो जो देखता है, सालों से देखता चला रहा है, उसी को वो सही समझता है। वो तो देखता है कि गांव वाले सबका वही आदत है कि गए और वो नट खोल के ले आए और उससे जो है अपना मछली मारने फंसा रहे हैं उसको। इसको नजर पड़ गई, जब ज्यादा हो रहा होगा, जो अधिकारी लोग नजर रख रहा होगा पुलिस वगैरह, तो उसको कोई नजर पड़ गया कि खोल रहा है, बस उसको पकड़ के उस पर मुकदमा चल रहा था। तो मैं बता कि इग्नोरेंस, he is ignorant, so he is not understanding that his action could lead to a disaster। कि कहीं पटरी जो है कोई ढीली हो जाती तो ट्रेन डिरेल हो जाता और फिर कितना लोग मारे जाते, कितना ज्यादा नुकसान होता बाय स्मॉल एक्शन। सो दैट इज हेयर ऑल्सो कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस पीपुल्स राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है ना? और इसी इग्नोरेंस का ही लोग फायदा उठाते हैं। पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, जो भी पढ़ा लिखा है, वो इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाता है लोगों। तो गांधी इसी के बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे वकील ये सब कमीशन खाते हैं, ये सब जो है सिर्फ किसान का ही काम असली काम है।
मेहनत का काम ही असली काम है, बाकी सब कमीशन खो रहे हैं। खैर, नोबल किसका है? एंटोन चेखोव। हम लोग को टेक्स्ट बुक में था वो स्टोरी पढ़ना, जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। In the case of the first instance also, there was violation of rights provided in the constitution। पहला जो हमने केस देखा जहां की कम वेजेस पर वर्कर्स को काम लिया जा रहा था, वो भी उनके राइट्स जो दिए गए उसका वायलेशन था, बट इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट। लेकिन उसका किसी ने कोर्ट में उसको चैलेंज किया। एज ए रिजल्ट वर्कर्स कुड गेट व्हाट वाज ड्यू टू देम इन द फॉर्म ऑफ राइटफुल वेजेस। तो जब किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया उस अधिकार के वायलेशन को, तो कोर्ट ने उनको जो है दखल किया और इसके कारण उनको जो उनका सही मुआवजा था, सही मजदूरी था, वो मिला। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स। तो संविधान में जो गारंटी किया गया है कि ये राइट्स कोई वायलेट नहीं कर सकेगा, इसके कारण ही उन वर्कर्स को जो है उनके शोषण के खिलाफ न्याय मिला। उसको कोई नया कानून नहीं बन सकता है ना, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को सरकार कर सकता है नहीं, ये तो हालात पर डिपेंड करते हैं, अभी से नहीं कहा जा सकता है। वही तो हम लोग स्टडी करेंगे आगे। फंडामेंटल राइट्स पर छेड़छाड़ हो सकता है, किया गया, कैसे किया गया, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा इसी चैप्टर में। नेक्स्ट इज द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, both these examples show the importance of having rights and of actual implementation of these rights। ये जो हमने दो केसेस देखा, एक तो वर्कर्स का और एक मचल लालू का, इससे हम समझ में आता है कि एक संविधान में राइट्स का क्या महत्व है और दूसरा उनके एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का क्या महत्व है। भाई पहले तो राइट्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी ना मिलेगा, तभी ना कोई फॉलो करेगा। जब होगा ही नहीं तब क्यों मानेगा कोई। तो पहला बात तो है कि होना चाहिए संविधान में, दूसरा संविधान में है लेकिन उसको एक्चुअली लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो दोनों चीज जरूरी है। फिर देखिए क्या हो रहा है, आलस क्यों आ रहा है। तो जो है संविधान में एक तो होना चाहिए राइट्स और दूसरा उसको एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में भी होना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए जो भी लोग हैं उनको। A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights। हाँ, उस पर देखते रहिए, तब एक्टिव रहिए। एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र हम कहते हैं, हाँ समझेंगे। बिल ऑफ राइट्स, बिल का मतलब कोई बिल, कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट को बिल भी कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स मतलब अधिकार पत्र कहते हैं इसको हिंदी में, अधिकार पत्र, जिसको हम चार्टर भी कई बार कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स इसलिए बिल ऑफ राइट्स इसलिए टर्म लिया गया है क्योंकि यूएस में उसका नाम है बिल ऑफ राइट्स, तो इसीलिए वहां से हमने उसको ये बिल का मतलब अधिकार भी होता है, अधिकार पत्र या चार्टर। हाँ हेलो, हाँ ले लीजिए।
जो है बोलिए उसको बाहर रखें। So, a democracy must ensure that individuals have certain rights. किसी भी लोकतंत्र में एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के लिए, डेमोक्रेसी आप समझते हैं, इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑन द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसे सिस्टम में ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनको कुछ अधिकार हो और उस अधिकार का सम्मान हमेशा सरकार करे। सरकार जो है हमेशा उन अधिकारों का सम्मान करे, उसको फॉलो करे। देयरफॉर इट इज़ ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ये एक रिवाज है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ राइट्स लिख दिए जाते हैं, उसको क्लियरली लिख दिया जाता है कि ये राइट्स यहाँ लोगों को होंगे। Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights. तो ऐसे एक जो लिस्ट होता है राइट्स का, जो कि संविधान में दिया गया होता है और प्रोटेक्टेड होता है, इसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर्स a remedy in case there is violation of these rights. तो यानी कि एक जो अधिकार पत्र इस तरह का जब दिया, एक बिल ऑफ राइट्स होता है जिसमें कि राइट्स मेंशन्ड होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, तो वो जो है सरकार को इस तरह उन राइट्स के खिलाफ काम करने से रोकता है, और अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो उसमें उसको जो है वो उसको उपाय, उसमें उसका सॉल्यूशन करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है, उपचार। नाउ फ्रॉम होम डज, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम होम डज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। एक नागरिक का अधिकार संविधान किससे बचाता है, किसके शोषण से बचाता है, कौन शोषण करता है नागरिक के अधिकार? एक आम आदमी का जो अधिकार दिया गया है वो किससे सुरक्षा करता है संविधान? The rights of a person may be threatened by another person or private organization. एक आदमी के अधिकार का जो है उसको या तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका वायलेशन कर सकता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उसका वायलेशन कर सकता है। In such a situation, the individual would need the protection of government. ऐसे हालत में उस व्यक्ति को किसके सुरक्षा की जरूरत होगी? सरकार से सुरक्षा की जरूरत होगी कि सरकार उसके अधिकार को सुरक्षित करे। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई प्राइवेट कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अधिकारों का अगर हनन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो सरकार से उसको उम्मीद होती है कि वो उसके अधिकारों की रक्षा करेगी। So it is necessary that the government is bound to protect the rights of individual. तो इसलिए आवश्यक है, जरूरी है कि सरकार जो है उसके किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हो, बाध्य हो, बाउंड है। On the other hand, the organs of government, that is the legislature, executive, bureaucracy or even the judiciary, in the course of their functioning may violate the rights of the person. ये भी पॉसिबल है कि जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जो अंग हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो या इवन जुडिशरी भी हो, वो भी अपने काम के दौरान किसी के अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। पहले तो हमने प्राइवेट के द्वारा देखा, कोई दूसरा आदमी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी आदमी के अधिकारों का अगर शोषण करता है, उसका अधिकार का वायलेशन करता है, तो ऐसे में वो एक्सपेक्ट करता है कि सरकार, कोर्ट, न्यायपालिका ये सब उसके अधिकार की रक्षा करेंगे।
लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कोई कानून ऐसा बना दिया कि जिससे किसी लोग के अधिकार का हनन हो रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, सरकार ने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जिससे कि कुछ लोगों का अधिकार का वायलेशन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का हो गया। ब्यूरोक्रेसी, जो प्रशासन है, पता चला अधिकारी जा रहे हैं कहीं और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी लोग का जो वायलेशन फंडामेंटल राइट का हो रहा है, किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, किसी को बिना कारण जो है उसको कोई चीज़ से उसका वंचित कर दे रहे हैं, उसका कोई चीज़ छीन रहे हैं, संपत्ति छीन ले रहे हैं, या उसको कहीं से उसको कोई काम करने से रोक दे रहे हैं। और इवन द जुडिशरी, या कई बार कोर्ट भी कोई फैसला ऐसा सुना दे सकते हैं जो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। तो ऐसे हालत में जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी, सरकार का अंग भी, कोई वो उस व्यक्ति के अधिकार का शोषण, अधिकार का हनन कर सकता है। उसके बाद अभी आएगा ना ये सब। यस यस, ऑफ कोर्स। क्या होगा So, फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So we have understood how a person's rights may be violated. A person's right may be violated by some private individual, by some private organization, or even by the organs of government itself. Institute of government or three pillar of government. Okay. Yes. So now we will understand now what is the fundamental rights in Indian Constitution. हाँ, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए यहां पर ये कह रहा है आई गेट इट, एक कमेंट है, इसको देख लेते हैं। आई गेट इट यानी मुझे समझ में आ गया। द बिल ऑफ राइट्स इज लाइक अ वारंटी कार्ड दैट वी गेट व्हेन वी परचेज अ टीवी और अ फैन। जैसे हम कोई टीवी और फैन जो है खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक गारंटी या वारंटी कार्ड मिलता है, इसमें ये आपको दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलता है इतने समय तक तो हम फ्री में उसको दूसरा बदल के देंगे या फ्री में उसकी सर्विसिंग करके देंगे। तो ये कहता है कि ये बिल ऑफ राइट्स उसी तरह का है जैसे हमें वारंटी कार्ड मिलता है। सर्विसिंग के जो वर्ड है, सर्विस करना, उसको सर्विसिंग आईएनजी लगा दिया जाता है। हाँ, सर्विस करना तो आईएनजी लगा दिया, सर्विसिंग। सर्विसिंग हो गया, सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, यस। ये भी बहुत सारे बच्चों लोग को क्लियर नहीं हो रहा है सर्विसिंग। नाउ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम सिर्फ एक केवल राइट्स की बात कर रहे थे। जब हम बिल ऑफ राइट्स बोले तो एक ऑर्डिनरी राइट्स की बात किया कि जब राइट्स जो है किसी को दिया जाता है लिखित रूप में, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि उनको क्या राइट्स हैं, ठीक है। अब हम उसका नेक्स्ट बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड दैट the importance of rights and demanded that the British rulers should respect rights of the people. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें हमारे लीडर्स ने ये अनुभव किया कि अधिकारों का क्या महत्व होता है, क्योंकि उनके अधिकार छीने जाते थे। बार बार सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती थी, मारती पीटती थी, बहुत तरह के टॉर्चर करती थी, लोगों के ज़मीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बेदखल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने पढ़ाई मॉडर्न इंडिया में। तो लीडर्स जो थे फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने ये इस चीज़ को समझा कि अधिकारों का क्या महत्व होता है, और उन्होंने ब्रिटिश जो समय के रूलर्स थे उनसे ये डिमांड किया कि सरकार को इन राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। द Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. ठंडा लगेगा सर, इस पे कर दे उसको पीछे फर्स्ट ठंडा हो। The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. तो मोतीलाल नेहरू
के लीडरशिप में कमेटी थी जिसने नेहरू रिपोर्ट अपनी सबमिट किया था 1928 में। तो कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी जिसमें सरकार से कई मांगे और उसमें इसमें फंडामेंटल राइट्स को लेके बात की गई थी। तो उसमें उस कमेटी ने 1928 में ही सरकार से एक बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी कि एक आपको लिखित रूप में अधिकार लोगों को बताने होंगे कि ये आपके अधिकार हैं और उस अधिकारों को आपको सम्मान करना होगा। It was therefore a natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinions on inclusion and protection of rights in the constitution. तो आप देख रहे हैं कि जब उसी समय नेहरू कमेटी ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी, तो आजादी के बाद हमारे देश के संविधान में अधिकार दिए जाएंगे लिखित रूप में, इसको लेके कोई भी दो तरह के विचार नहीं थे। सबका मत था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित तौर पर अधिकार दिए जाएं और उनको संरक्षित किया जाए। ये नहीं कि खाली लिख के दे दिया और फिर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसी चीज का फायदा क्या। तो उसको दिया भी जाए लिखित रूप में और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए। यस, the constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. तो ऐसे कुछ अधिकार जो कि स्पेशली प्रोटेक्ट किए जाएंगे सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिनको की नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स। मौलिक मतलब क्या है? बेसिक अधिकार। यस, अच्छा, ठीक। which are very essential, without which a person cannot lead a normal life. बेसिक किसको कहते हैं? Yes, बेसिक मौलिक। हाँ, very important. मौलिक मतलब होता है बेसिक। essential for normal survival. बिल के बारे में, बिल मतलब अधिकार भी होता है क्या? अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स। नहीं, वो तो ठीक है। बिल अधिकार के सेंस में भी यूज किया जाता है। बिल का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। बिल देखिए, अगर पॉलिटी में बात करेंगे, लॉ में बात करेंगे, वहां लीगल डॉक्यूमेंट। अगर इकोनॉमी में बात करेंगे तो बिल का अलग मतलब होता है। बिल होता है यानी रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंसेस। आपको बिल दिया, आप कहते हैं बिल दीजिए। वही। तो बिल का मतलब हुआ जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसका डिस्क्रिप्शन, रिटन डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ भाई इतना का सामान खरीदा, ये उसका। तो बिल हम लोग इकोनॉमिक के सेंस में ही मार्केट में यूज करते हैं। हाँ, 12 अच्छा, कल का अपलोड करना भूल गए। इकोनॉमिक इंडियन एक्सप्रेस भी और वो रिकॉर्डेड भी। Now, so the constitution, it listed rights, some rights that would be specially protected, जिनको खास करके विशेष रूप से बचाया जाएगा, जिनको जल्दी कोई नहीं वायलेट कर सकेगा, उनको नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स। संविधान में और भी कई तरह के राइट्स दिए गए हैं, बट दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे आर कॉल्ड जस्ट लीगल राइट्स।
समझ गए? वो भी हाँ। सुप्रीम कोर्ट से हाँ, तो लीगल राइट्स हैं, जैसा कि वो उसके केस में आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं क्लेम कर सकते। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, उन्हीं राइट्स को वायलेशन के लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 जा सकते हैं। बाकी राइट्स के वायलेशन के लिए आपको नॉर्मली जाना पड़ेगा किसी भी कोर्ट में, वहां आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो दे आर जनरल राइट्स, बट दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। दे हैव स्पेशली बीन प्रोटेक्टेड। देखिए, द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट्स, देखिए यहां दे दिया कि द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट्स दैट these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. फंडामेंटल वर्ड का मतलब है कि these are special rights, और जिसको अलग से लिखा गया है संविधान में, और उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं कि उनकी सुरक्षा किया जा सके। The fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार उनको वायलेट नहीं कर सके। समझ गए? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये इंश्योर किया गया है कि उनको वायलेट नहीं किया जा सके। सरकार उस पर नियम कानून नहीं बना सकता है, नहीं, वायलेट नहीं कर सकता इजली। पहले, अब तो बोले ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का दे दिया, उसमें वो नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं सरकार, वो भी नेट पे मिल जाएगा। मिल जाएगा, सब बुक ही आपको दे देंगे, नेट क्या लेगा, सब बुक मिल जाएगा, भेज देंगे आपको। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। जैसा अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले कि कुछ और भी राइट्स हैं, उनसे अलग होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। देखिए, while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. जो दूसरे ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो बाकी सामान्य कानूनों द्वारा सुरक्षित होते हैं, बट द फंडामेंटल राइट्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फर्क समझ में आ रहा है? जो दूसरे राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके लिए दूसरे जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो अप्लाई होंगे। जो दूसरे ऑर्डिनरी प्रोसीजर है किसी भी वायलेशन के केस में, वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है? वहां आप एक नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, या जहां भी जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगा उसमें जाएंगे, वहां कार्रवाई होगा, उससे फिर जो भी होगा उसका, दैट इज द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। बट फंडामेंटल राइट के केस में वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, इसलिए वहां स्पेशली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ये तो हम समझ गए। और उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी देता है, वही दिया गया है, वही कहा गया है कि while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making. जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको विधानसभा नहीं, लेजिस्लेचर, चाहे तो वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी हो, मतलब असेंबली, ये लेजिस्लेचर चाहे वो स्टेट की हो या यूनियन की हो, वो ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग से बदल सकता है। सामान्य कोई भी बिल ले आएगा और वो पास कर हो गया तो वो जो है बदल जाएंगे ऑर्डिनरी राइट्स। बट अ फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन एक फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना होगा। और ये भी बहुत पहले की बात है। मैंने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया, अब उसको वैसे भी नहीं किया जा सकता है आसानी से। मतलब कि ये अमेंडमेंट इस पे नहीं हो सकता। अमेंडमेंट
नहीं हो सकता है, और होगा अगर मतलब वो पहले कोर्ट उसका सुनवाई करेगा, मान लीजिए सरकार करता है तो कोर्ट उसको देखेगा कि ये मतलब हो सकता है कि नहीं, कोर्ट उसको मतलब उसके लायक रहेगा तब ना, इसी तरह से छेड़छाड़ मतलब जरूरत से ज्यादा कर देगा तब तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए कानून बनाने से रोक नहीं सकता है कोर्ट, हाँ ये बात तो ठीक है। पार्लियामेंट का अधिकार है कानून बनाना। हम्म। वो मान लीजिए कोई कानून लाता है बनाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, वो उस देखेगा बोलेगा नहीं गलत है, उसको इनवैलिड कर देगा। हाँ जैसे अभी इलेक्शन में हाँ। उसको जज का जो किया था अपॉइंटमेंट का, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। इसीलिए पहले सरकार कानून लाने से पहले अपना डिस्कस भी करता है, अटॉर्नी जनरल और कई लोगों से डिस्कस किया जाता है कि कोर्ट में ठहरेगा कि नहीं, बेकार में किस लिए अपना नाम खराब करने के लिए ऐसा काम करें। हाँ, तो पहले ये सब डिस्कस करके और उसके बाद प्रेसिडेंट से अमेंडमेंट के लिए पहले प्रेसिडेंट से सलाह लेना पड़ता है। पहले प्रेसिडेंट का हाँ, अमेंडमेंट करने के लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो प्रेसिडेंट से भी होता है कि भाई ऐसा ऐसा हम अमेंडमेंट करने का सोच रहे हैं, तो प्रेसिडेंट भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि भाई ये लीगल है क्या ऐसा करना। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं ठहरेगा, तो प्रेसिडेंट मना कर देगा कि भाई क्यों करते हो अपना नाम खराब करने के लिए, तो ठहरेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। या हाई कोर्ट में भी, वो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। बिसाइड्स दिस no organ of government can act in a manner that violates them. इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग इस तरह से काम नहीं कर सकता है कि वो उन कानूनों का उल्लंघन करे, कि कल को डीएम साहब किसी को कोई गलत कार्रवाई कर दे, किसी को ऑर्डर कर दे, इसको भाई गिरफ्तार कर लो, इसको ले चलो थाने, दैट इज अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, ही कैन नॉट डू लाइक दैट। इवन सम पुलिस ऑफिसर गलत तरीका से कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो भी फंडामेंटल राइट्स का यस डेफिनेटली इट इज अ वायलेशन। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। यस डेफिनेटली, एंड पीपल हैव गॉन, लोग जाते ही हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाके मतलब कि अगर कोई अरेस्ट किया बिना मतलब। अब तो मैंने आपको बताया, तो अभी उसका केस में वो खेड़ेकर जो पूजा खेड़ेकर जो फ्रॉड करके गई हुई है आईएएस में, उसका यही ना हुआ, उसका अरेस्ट का वारंट निकला हुआ था। तो अरेस्ट वारंट वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी दे दिया राहत कुछ दिन के लिए कि अभी 14 तारीख तक, फरवरी तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो होता ही है। अगर उसके पास अरेस्ट करने का वारंट है तब वो कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जाइए। अगर पहले चलेगा तो वो पहले मिल जाता है, अरेस्ट करने के बाद कोई और आपके उस पर जाता है तो उसको कार्रवाई होगा। नहीं वो अब कह रहे कि अगर अरेस्ट कर रहा है उसके पास ये है वारंट है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट वारंट है तो अरेस्ट करेगा ही वो, तो डेफिनेटली अरेस्ट उस डेफिनेटली सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हम। अरे तो वही ना कह रहे हैं, जैसे उसको पता चल गया होगा कि अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, तब ना पहले वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दी थी पहले से ही कि हमको कब, उसके लिए है, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल होता है, मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, मुझे गिरफ्तार कर सकती है गलत, उचित नहीं, अनुचित तरीके से, तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा कि मुझे मेरे खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है, मुझे पहले से ही एंटिसिपेटरी बेल दे दीजिए। कोर्ट अगर उसकी बात को सही मानती है तो उसको पहले से ही बेल इशू कर देती है। ऐसे केस में अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप देखिए मेरे पास कोर्ट का पहले से एंटिसिपेटरी बेल है, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो भी है प्रोविजन, एंटिसिपेटरी बेल होता है वो। एंटिसिपेटरी मतलब पहले से जो सोचा हुआ, लगता है कि हम खिलाफ कर सकते हैं, ANTICIPATORY, एंटिसिपेटरी बेल। ये सब बहुत कहाँ, ये सब आम आदमी सब जानता होगा। आम आदमी को क्यों गिरफ्तार करेगा पुलिस? एक बात बताइए, पुलिस क्यों किसी को बिना काम के गिरफ्तार करेगा? उसके पास और काम नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए कुछ गड़बड़ होगा तभी कोई कुछ, हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार गलत होता है, पुलिस किसी को, इनोसेंट पर्सन को फंसाती है, करती है, दैट इज ऑल्सो, बट
वो बहुत कम होता है, दैट इज नॉट टू मच। तो भाई नेचुरल है, आप कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होंगे वैसे डिस्प्यूटिंग एक्टिविटी में, तभी पुलिस आपके खिलाफ कुछ करती है। ठीक है भाई, इतना लोग तो सड़क पर चल रहा है, क्यों नहीं पुलिस सबको पकड़ लेती है, ट्रैफिक क्यों नहीं रोकती? Now, as we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility. हम आगे जब पढ़ेंगे देखेंगे कि it is the judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the government. तो ये कोर्ट के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार के जो है, सरकार किसी के अधिकारों का वायलेशन नहीं करे, सरकार किसी आदमी के राइट्स का वायलेशन नहीं करे। सरकार या उसका कोई भी आदमी, उसका कोई भी ऑर्गन, इसको देखने की जिम्मेदारी और शक्ति किसको दी गई है? जुडिशरी को, कोर्ट्स को। तो फंडामेंटल राइट की जिम्मेदारी किसको दी गई है? फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बोथ। बाकी राइट्स की जिम्मेदारी सभी कोर्ट्स की है, कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए स्पेशली इन्हीं दोनों कोर्ट को, ऐसा नहीं आप दूसरे कोर्ट भी जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को विशेष पावर दिया गया। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी, ऐसे आप अपने जिले के कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कोर्ट तो कोर्ट है, लोकल में है तो जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में हाँ जाए। वही हम कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी तो हाँ कहीं भी जा सकते हैं, बट if you want you can also approach directly the high court and supreme court। दूसरे राइट्स के वायलेशन के केस में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हाई कोर्ट। वहां जैसे बीपीएससी के लोग थे, बीपीएससी वाले गए तो उनको कह दिया सुप्रीम कोर्ट की जाइए पहले अपने हाई कोर्ट में अपील कीजिए, पटना हाई कोर्ट वहीं पर है, आप दिल्ली किस लिए कर रहे हैं? ये हमारे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है। लेकिन जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का बात होता है वहां वो एक्ट करता डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वुड हैव टेकन एक्शन। So it is the power and responsibility of the judiciary to protect the fundamental rights and especially the fundamental rights का तो ऐसे सब judiciary को है ही। Executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner। सरकार के कोई भी काम से, सरकार जब मैं बोलता हूं, मैंने डिफाइन किया है आपको कि स्टेट मीन्स एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, चाहे वो छोटा से छोटा अधिकारी हो, कोई सरकारी कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, जो हाँ दैट इज लिंक्ड टू द गवर्नमेंट, और रनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एड, वो सरकार के पैसों से अगर चल रहा है। अच्छा, ये भी चीज है। हाँ, लिंक फर्स्ट हो गया, लिंक्ड टू द गवर्नमेंट या रिसीव्स गवर्नमेंट एड, जो पैसे जिसको सरकार से मिलते हैं कामकाज के लिए। मदद रिसीव गवर्नमेंट की ओर पैसा नहीं, जिसको सरकार से कुछ पैसा मदद किसी भी तरह का मिलता है अपने काम का, हाँ किसी भी तरह से होगा। तो यहाँ कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव एज वेल एज, देखिए ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी चाहे तो एग्जीक्यूटिव जो है सरकार का अंग या लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर है, दोनों के एक्शंस को, कोई भी जो दोनों ने काम किया है उसको जुडिशरी जो है इलीगल डिक्लेयर कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या उसको गलत तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी उस पर कंट्रोल लगाते हैं उसको। ठीक है, जो होना चाहिए वो नहीं, उसको जैसे मान लीजिए है कि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया कोई पुलिस अफसर, अब वो जेल नहीं ले गया कहीं नहीं, लेकिन आपके घर के या कहीं किसी कमरे में ले आके बंद कर दिया, तो वो भी आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फंडामेंटल राइट को, लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो
that is either the violation or restricting the fundamental right in unreasonable manner, बिना कोई कारण के आपको कहीं कमरे में बंद करवा दिया, आपका लाइसेंस ले लिया कि गाड़ी नहीं चलाना है, तुम्हारा लाइसेंस ले लिया, तो बिना लाइसेंस आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, कहीं आएंगे जाएंगे कैसे? मान लीजिए आपको गिरफ्तार भी नहीं किया, कुछ नहीं, आपका लाइसेंस लेके रख लिया है, आपका पासपोर्ट लेके रख लिया है, तो जब पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कहीं जाएगा कैसे? दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग योर फंडामेंटल राइट। और ये हुआ था इशू संजय गांधी या मेनका गांधी के साथ हुआ था कि उनको विदेश जाने से इस पर उन्होंने केस हुआ था, मुझे पूरा केस याद नहीं आ रहा, उनका पासपोर्ट जो है वो कर लिया गया था। हाँ, however fundamental rights are not absolute और unlimited rights, ये भी बात है ध्यान रखने के लिए। मैंने कहा भी कि फंडामेंटल राइट है बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है, कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सरकार उसके फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ कोई कारण से, कोई तर्क से अगर है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक भी लगा सकती है। ठीक है, आगे समझेंगे कि कब कैसे रोक लगा सकती है। तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, और ये वही लिखा हुआ है, पार्ट 3 में ही लिखा हुआ है, जहां फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वही ये चीज लिखा गया है कि प्रोवाइडेड, प्रोविजो कहते हैं उसको, कि प्रोवाइडेड दैट, कि अगर ऐसे हालात होंगे तो इन पर ये रोक लगाई जा सकेगी। सब किताब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 10 तरह का अलग हाँ, अलग तरह का सवाल दिमाग में हाँ, आता है। जैसे आर्टिकल आपको 140 आर्टिकल नहीं सॉरी 144 सीआरपीसी का जो धारा है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे 144 जो लगता है उसको स्ट्रिक्ट सेंस में तो हम वैसे कर्फ्यू कहते हैं, ऐसे उसको निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो 144 है कि जिसमें हो जाता है कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं कहीं हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग का, हाँ, ग्रुपिंग नहीं, मैं कहीं भी आप बाहर कहीं भी 4 लोग एक साथ खड़े नहीं रह सकते हैं, अलग अलग खड़े हो सकते हैं। हाँ, अलग अलग दूरी पर एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, 4 या उससे ज्यादा। तो दैट इज टू प्रिवेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि कोई दंगा फसाद जब होता है, कोई ऐसी घटना वायलेंस हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए धारा 144 लगा दी जाती है कि कहीं भी आदमी लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ जमा होंगे वहीं लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी होगी। और उसी को स्ट्रिक्ट फॉर्म में जब हो जाता है, जब शूटेड साइट ऑर्डर होता है, तो उसको कर्फ्यू कहते हैं, कि घर से नहीं निकलेंगे और अगर पाए जाएंगे बाहर तो गोली मार दी जा सकती है कर्फ्यू में। तो दैट इज 144, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। नहीं, वहां ऑर्डर होता है गोली मारने का, सीधे शूटेड साइट ऑर्डर भी होता है कर्फ्यू में निकलने पर आपको गोली मारी जा सकती है, उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, अपना जान का रिस्क लीजिए जिसको निकलना है। सो माने कि मेडिकल ट्रीटमेंट में निकलना होगा तो नहीं निकल, कर्फ्यू का मतलब नहीं, फिर आपको पहले से परमिशन लेके निकलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो उसके लिए परमिशन तो लेना पड़ेगा। तो परमिशन उसके लिए, हाँ, स्पेशल उसमें पास इशू किया जाता है, उसमें आपके साथ गाड़ी जाता है प्रशासन का, ऐसे नहीं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी स्टडीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। नाउ हियर compare the fundamental rights in the Indian Constitution with the Bill of Rights in the South African Constitution। अच्छा, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स दिया गया है और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिया गया, उसको कंपेयर करने कहा गया है। So बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स एक ही है। बिल ऑफ राइट्स जो साउथ यहाँ जो कह रहा है कि साउथ, बिल ऑफ राइट्स एक जनरल टर्म हुआ, हालांकि अमेरिका में वही नाम है बिल ऑफ राइट्स, या जैसे साउथ अफ्रीका में भी उसको बिल ऑफ राइट्स, बहुत देश में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल, हमारे यहाँ उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन एक तरह से एक अपनी समझ को चेक करने के लिए कि आप फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में दिए गए हैं और साउथ अफ्रीका में जो बिल ऑफ राइट्स है उन दोनों को कंपेयर कीजिए और उसमें एक लिस्ट बनाइए दैट आर कॉमन टू बोथ, जो दोनों में राइट्स कॉमन हैं उसको लिस्ट बनाइए। अवेलेबल इन साउथ अफ्रीका बट नॉट इन इंडिया, जो साउथ अफ्रीका में राइट है पर इंडिया में नहीं है, ऐसा का लिस्ट बनाइए। एंड क्लियरली ग्रांटेड इन साउथ अफ्रीका बट इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो साउथ अफ्रीका में ऐसे राइट क्लियर तौर पे बिल्कुल लिख दिया गया है लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं है, लेकिन वो इम्प्लिसिट है, मतलब छुपा हुआ है कि मतलब निकलता है उसका वो है, लेकिन क्लियरली उसको नहीं लिखा गया है, जबकि साउथ अफ्रीका में उसको क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा, नेट पर आप सर्च करिएगा बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीका, आ जाएगा सामने, उसमें आप देखिएगा, नोट कर लीजिए क्या क्या राइट्स उसमें दिया गया है। ठीक है, और आपका इंडिया में तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, तो देखिएगा कि दोनों में क्या क्लियरली लिखा गया है और ये क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, now right to equality, consider the following two situations, these are imaginary situations but similar things do happen and can happen। कहा जा रहा है कि दो सिचुएशन जो इमेजिनरी यहाँ दिया जा रहा है उसको इमेजिन करिए, हालांकि ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं इस तरह की। डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या आपको लगता है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है इन केसेस में? फर्स्ट इज स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज, स्वदेश कुमार is visiting his village, he is accompanied by one of his friends, देखिए स्वदेश कुमार कोई व्यक्ति है जो अपने गांव गया है, he is accompanied by one of his friends, वो अपने एक मित्र के साथ है। they decided to have a cup of tea at the village roadside hotel, वो गांव में रोड के किनारे कोई होटल है, वहां एक कप चाय पीना चाहते हैं। द शॉपकीपर न्यू स्वदेश कुमार बट आस्क्ड द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू नो हिज कास्ट, तो जो दुकानदार था वह स्वदेश कुमार को तो जानता था लेकिन उसने उसके दोस्त का नाम पूछा ताकि वो उसकी जाति जान सके। आफ्टर दिस द शॉपकीपर सर्व्ड टी टू स्वदेश कुमार इन अ नाइस मग while his friend was given tea in an earthen cup because he was Dalit। तो नाम पूछने के बाद उस दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक बढ़िया कप में चाय दिया लेकिन उसके दोस्त को एक मिट्टी के कप में चाय दिया क्योंकि वो एक दलित जाति से था। एक केस ये दिया है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? तो ये तो बात होती है, क्या कंफ्यूजन? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार से ये तो नहीं आ पा रहा फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्शियलिटी हो रहा है। देखिए जब वो व्यक्ति गए चाय की दुकान पर चाय पीने, दोनों आम आदमी हैं कानून की नज़र में, तो जब एक को उसने कप में चाय दिया तो दूसरे को मिट्टी के कप में क्यों दिया? और उसने स्वदेश कुमार का नाम क्यों नहीं पूछा उसके, और उसका नाम पूछ के जाति के अनुसार उसको मिट्टी के कप में क्यों दिया?
दिस इज डेफिनेटली नॉट अ इक्वल स्टेटस। आपके फंडामेंटल राइट कहा गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी प्रतिष्ठा की बराबरी। तो एक या तो दोनों को मिट्टी के कप में देना था, तो या दोनों को कप में देता, एक को बढ़िया कप और दूसरे को मिट्टी के कप में क्यों दिया? ये उसके क्या प्रतिष्ठा की समानता है? क्या उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये दूसरा तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है जबकि मित्र को जो है बढ़िया कप में दे रहा है? उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो। नहीं, तो वही मैं तो एक आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ आपके सामने। ये भी तो केस बन जाएगा। चलिए, मैंने जो आर्ग्यूमेंट था वो आपके सामने रखा, आगे हम लोग देखेंगे। केस बन जाएगा। हाँ, बिकॉज ही वॉज दलित, यहाँ पर खास वर्ड है दलित। अगर वो दलित नहीं होता तब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि दलितों को मतलब जो भी है जो कुछ कास्ट को प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जैसे अनटचेबिलिटी या और कुछ प्रोहिबिट किया गया है, तो उसके कारण यहाँ पर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आर्गुमेंट रखा है वकील की तरह। हाँ, सेकेंड केस है, सेकेंड केस देखेंगे। एन ऑर्डर इज सर्व्ड टू 4 न्यूज रीडर्स ऑफ ए टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन। एक न्यूज चैनल है, उसमें 4 जो न्यूज रीडर्स कहते हैं जो टीवी पर न्यूज पढ़ते हैं, तो 4 न्यूज रीडर्स को यह आदेश दिया गया कि अब से वो न्यूज नहीं पढ़ेंगे। दे आर ऑल वीमेन, ये चारों महिलाएं हैं। द रीजन गिवन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ 45। कारण बताया कि आप सब 45 साल से ज्यादा की हो गई हैं, इसलिए आप लोग न्यूज नहीं पढ़ेंगे। 2 मेल न्यूज रीडर्स अबव द सेम एज आर नॉट बार्ड फ्रॉम प्रेजेंटिंग द न्यूज। जबकि 2 मेल न्यूज रीडर्स जो कि 45 साल से ज्यादा के हैं, उनको जो है इसमें वो ऐसा रोका नहीं गया है न्यूज पढ़ने से। ये दूसरा केस है। एक टेलीविजन चैनल है, वहां पर 4 महिलाओं को कह दिया गया कि आज से आप जो है न्यूज रीडिंग का काम नहीं करेंगी क्योंकि आप लोग का उम्र 45 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन वहीं 2 मेल न्यूज रीडर हैं जो उनको उम्र 45 साल से ज्यादा है, लेकिन उनको नहीं रोका गया है सर। तो इसमें आप क्या कहते हैं? ये तो भेदभाव है। किस तरह का भेदभाव? रेस का। रेस का? मानव जाति का। मानव जाति का है? मानव जाति कहते हैं कि जेंडर का? अच्छा, जेंडर जाति का। जेंडर जाति, जाति कहाँ वर्ड आ रहा है? जेंडर बोलिए या सेक्स बोलिए। हाँ, लिंग के आधार पर कि भाई वो फीमेल हैं तो 45 के बाद उनको बार कर दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा उम्र भी तो 45 के बाद है, उतना भी ज्यादा हेल्दी नहीं रहती है काम करने में। ये आप नहीं समझ। तो मेल क्यों नहीं? मेल को तो नहीं रोका गया, समझिए बात को। मेल को 45 के बाद अगर खाली उनको रोक दिया गया होता, देखिए अगर ये लास्ट का बात नहीं होता कि मेल न्यूज रीडर्स का कोई बात नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का बात होता कि 45 के बाद आप नहीं न्यूज रीडिंग कर सकती हैं, तब भी मामला होता, ठीक है। लेकिन यहां तो आपको दे दिया है कि 2 मेल न्यूज रीडर्स हैं जो 45 साल से ज्यादा के हैं, लेकिन उनको नहीं रोका गया है। तो फिर महिला को क्यों रोका गया है भाई? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इट इज समवॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि भाई मेल्स आर बीइंग अलाउड टू वर्क बट फीमेल्स आर नॉट। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर कहाँ बराबर है, अपॉर्चुनिटी कहाँ बराबर है? उसको तो आप काम से हटा रहे हैं, काम उसका छीन रहे हैं, जबकि मेल को तो नहीं छीन रहे हैं। अगर 45 साल से ज्यादा मान लीजिए क्राइटेरिया होता तो फिर मेल के लिए भी होता, फीमेल के लिए भी होता।
तो मेल को तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो पढ़ रहा है 45 साल से ज्यादा भी, लेकिन फीमेल को आप 45 साल से ज्यादा पर रोक दे रहे हैं। तो दिस इज अ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ लिस्ट किया गया है। तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, मैंने आपको करा दिया है, तो इसको आप देख लेंगे। इसको मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। होटल, रेल, टैंक, ये सब भी लिखा हुआ है। बाथरूम में ये सब बाथिंग घाट, रोड, बाथिंग टैंक, घाट्स, हाँ मतलब इसको याद कर लीजिए जो भी है। राइट्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, अबाउट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस में कौन सा भेदभाव हो जाता है? बताएंगे, जैसे आप बिहार और यूपी के हैं, इस पर आधार पर आपको नौकरी से रोका जा रहा है। अच्छा, वो हो गया बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ। डोमिसाइल अभी आया है, अभी ही आया है, जो अभी आपको दिए तो थे जी, बताए तो थे कि पीजी में डोमिसाइल बेसिस पर कर रहा था, तो उसको चैलेंज किया है। देखिए, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन, ये साफ साफ भेदभाव का मामला है। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, एक मामले में तो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इन अनदर इट इज बेस्ड ऑन जेंडर, दूसरे में जेंडर के आधार पर है। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड, क्या आपको लगता है कि ये न्यायपूर्ण है इस तरह का भेदभाव करना? राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, बराबरी का जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये कोशिश करता है कि ऐसे और दूसरे तरह के भेदभाव को दूर कर सके समाज से। It provides for equal access to public places like shops, hotels, देखिए आ गया ना, equal access to public places, इक्वल एक्सेस करना, यानी एक जैसा सबको एक्सेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को दुकान में जाने दे रहे, दूसरे को कह रहे दुकान से बाहर खड़े रहो। वो कपड़ा के आधार पे भी होता है, कभी कपड़ा के आधार पे भी रोक देता है, बाहर हाँ, यूनिफॉर्म के आधार पर। वो नहीं निकला। हाँ, तो वही कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल, हुआ ना, वो आया ना, इक्वल एक्सेस कहाँ है? किसी को आप उसके कपड़े के आधार पर रोक दे रहे हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते हैं, वही कर, लाइक शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, कुएं, बाथिंग घाट्स, नहाने के घाट जो होते हैं, नदी, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बाहर से जिसे जो होता है वो सब में रोक देता है सर। कहाँ? अंदर जाने से। कहाँ? अगर लोकल कपड़ा पहन के जाता है तो। हाँ, कहाँ? अंदर में मतलब जाने से। कहाँ रोकता है? होटल में? हाँ। कौन होटल? रेस्टोरेंट में जैसे वो रोकता है। देखिए, वो रोकता है, वो उनका रोकने का दूसरा होता है, वो रोकने का उनका होता है कि भाई अननेसेसरी आदमी नहीं जाए उसमें, कि मतलब कई बार बिना कारण आदमी घुस जाता है, घुसने की कोशिश करता है, जिसको वहाँ खाना पीना है नहीं, कोई दूसरे, या अननेसेसरी वो तफरीह के लिए, मजा लेने के लिए कि भाई घुसते हैं देखते हैं क्या है, इसलिए रोकता है। और ऐसा नहीं है, जो अगर जेन्युइनली कोई खाने के लिए ठीक है उसको नहीं रोकेगा, कहेगा कि हाँ भाई हम खाने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश उनकी अब ये होती है, कोई किसी को जांच नहीं सकता है किस लिए कोई जा रहा है, मन तो किसी का देख नहीं सकता है, बट हाँ वहाँ वो कहेगा कि भाई इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, यू कैन नॉट स्टॉप मी, तो वो जाने देगा उसको। देयर कैनॉट बी, जैसे आई हैव ऑल्सो, देर वॉज अ क्लब, आई वॉज गोइंग टू अ क्लब टू सी समवन, आई हैड टू एक्चुअली फाइंड समवन, तो वो कहे कि सर आप लोग इस एज से ज़्यादा अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं उसको देख लूँगा। मैं बोला कि आई वांट टू लुक फॉर सम पर्सन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोले कि सर आप बाहर ही वेट कर लीजिए, बेहतर होगा, बाहर से ही वो देख लीजिए, या फ़ोन कर लीजिए उसको, जो आदमी, अगर किसी से मिलना था शायद मुझे, हाँ किसी से मिलना था, तो उसने बोला कि आप कॉल कर लीजिए, वो अगर आ जाएगा साथ में ले जाता है तो ठीक है।
फिर मैंने कॉल किया तो कोई आया तो फिर ले गया, साथ में गया। एनीवे, सो दैट इज डन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि अनवांटेड लोग नहीं हैं, लेकिन वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन तो है। Yes. डेफिनेटली। जैसे इन मेनी क्लब्स द सिंगल्स आर नॉट अलाउड, कि कपल्स आर अलाउड ओनली। से इस पे भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हाँ, हैं। तो दैट इज ऑल्सो वायलेशन। There cannot be, there cannot be any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. ठीक है, हाँ, तो अभी कह दिया कि कोई भी तरह का भेदभाव केवल धर्म, मानव जाति या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स any discrimination in public employment on any of above mentioned basis. उसी तरह सरकारी नौकरी में भी इस तरह के किसी तरह का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। This right is very important because our society did not practice equal access in the past. ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहले पास्ट में हमारे समाज ने सबको इक्वल एक्सेस नहीं दिया है, इसलिए भी ये अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि पहले का आपको पता ही है सब कहानी, कुओं पर, तालाबों पर, नदियों में, मंदिरों में, पार्कों में या और ऐसे कॉमन प्लेसेस में, या इनफैक्ट स्कूलों में। स्कूलों में अब तो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय पहले तक होता था जरूर। और अभी भी आप कहीं ना कहीं कहिएगा, मैं आपको कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे जा रहे हैं उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। जो गरीब कोटा से बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि अब हालांकि कानून बन गया है कि 25% सीट आपको रिजर्व करना है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो प्राइवेट स्कूल्स में जो ईडब्ल्यूएस कोटा पे जा रहे हैं उनको अलग बैठाया जाता है। गार्जियन लोग अपने बच्चों को बिल्कुल ये कर देते हैं, ताकीद कर देते हैं कि उन बच्चों से नहीं मिलना जुलना है, उनसे बात नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स में एक माहौल बना रहता है कि ठीक है, अब कानून है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी और बच्चे तो बड़े अजीब ढंग से करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी लोगों को, बड़े ही अजीब व्यवहार, और बच्चों को बात बचपन से डाल देते हैं मन में उनके। मैं तो देख रहा हूँ आजकल के बच्चों का क्या हाल है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके मन में जन्म से ही भर दिया जा रहा है। उससे नहीं मिलना है, उससे नहीं बात करना है। ठीक है, ये तो मतलब बहुत दूर की बात आप कह रहे हैं। मैं तो देखता हूँ मतलब एक कॉलोनी में ही रह रहे हैं, एक सोसाइटी में ही रह रहे हैं, उनके बच्चों से नहीं मिलना, उनके बच्चों से नहीं खेलना है, ये करना है, वो करना है। बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो कि डिजायरेबल नहीं है, इट इज अनवांटेड, बट गार्जियंस क्रिएट। तो आज हम तो वैसा ही समाज बना रहे हैं ना, वही बच्चे तो बड़े होके कल बड़ा समाज बनाएंगे, उनके मन में हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, हम भी जैसे होता था बचपन में थे और नौकर होते थे हमारे यहाँ घर में, तो नौकरों के साथ बैठ के खेलते उलते रहते थे। एक हमारी उम्र का होता था तो उसके साथ खेलते उलते थे, कुछ या बैठा के कभी कुछ खेल लिए, लूडो वगैरह सब। तो हमारे पिताजी लोग डांटा करते थे, मना करते थे कि नौकर लोग साथ क्यों बैठ के खेलते हैं। तो हमें फील होता था कि अरे भाई वो भी तो एक बच्चा ही है, ठीक है काम कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो बट ठीक है, दैट वाज, ऐसा नहीं कि हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट था इस तरह का, लेकिन हाँ एक दो बार ऐसा उन्होंने जरूर बोला कि नौकरों के साथ बैठ के खेलते रहते हो या ये है वो। तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन दैट वी feed in the minds of our young children and that they carry inherit for a long period, और बाद में आगे वही सोच हो जाती है बहुत बार। तो पास्ट का हमारा एग्जाम्पल है कि लिखा है यहाँ, देखिए बेचारी पूछ रही है कि डू सच थिंग्स रियली हैपन इन आवर कंट्री और आर दिस प्योरली इमेजिनरी। देखिए कह रही इमेजिनरी, अरे हाई कोर्ट के जज को नहीं जाने दिया तो कह रही इमेजिनरी है। कैन यू बिलीव, हाई कोर्ट के जज को नहीं जाने दिया था चेन्नई के क्लब में, क्योंकि वो धोती और ट्रेडिशनल अपना पहने हुए थे ड्रेस, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग।
कि जब न्यूज़पेपर्स में आया कि हाई कोर्ट के जज को रोक दिया जाने से। तो वो भी तो फंडामेंटल राइट्स पे ही है ना। अरे फंडामेंटल राइट तो छोड़िए, वो तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए होता है। वो सोचिए कि जज कितना एमिनेंट पर्सन है, हाई कोर्ट का जज है, और अपने ही स्टेट में उसको जाने नहीं दिया जाए, तो वो भी अडिग हो गया, वो बहुत टाइट है, कंजर्वेटिव है। तब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, वो कहा कि हमारा 100 साल का नियम है, आज का नियम नहीं है, हम नहीं जाने देंगे, आप कोई भी रहे, आप देश के प्रधानमंत्री रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या हुआ उसमें? नहीं जाने दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को, जब जज ने फिर इतना हाईलाइट किया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी जो क्लब्स हैं तो वो गैर कानूनी हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो अपने नियम बदलें। तब जाके वो नियम बदला। लेकिन अब कितना वो इम्प्लीमेंटेशन में है, हम नहीं कह सकते हैं कि नियम बदलने से वो बदल तो जाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, बहुत उसमें ये हुआ था। और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भी कानून इस देश में नहीं चल सकता है जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा, उनको बंद करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि वो अपने कानून बदल लें। जो वहाँ था वो जस्टिफाइड था, वो बोला कि सर हमारे क्लब का ये कानून है, तो ये कानून में फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी है, और ये आज से नहीं 100 साल पुराना कानून है, ब्रिटिश समय से ही चला आ रहा था। तो वो कहे कि हम नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी रहें, दैट इज, लेकिन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है अपने क्लब का, और ये लोगों, हम अपने मेंबर्स के ही लिए करते हैं कि वी कैन नॉट अलाउ एनी वन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, यू हैव टू कम इन फॉर्मल ड्रेस इफ यू वांट टू कम। नहीं जाने दिया। वो भी बहुत देर तक वहाँ पर तमाशा जज किए रहे। तो फाइनली व्हेन दिस मैटर वाज ब्रॉट इनटू मीडिया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट टू कॉग्निजेंस, एंड देन इट इशूड द, उसको देखिएगा, नेट पर मिल जाएगा वो केस। कहाँ के है? साउथ साउथ चेन्नई का है, चेन्नई का है। इट इज अ मैटर ऑफ चेन्नई। आई विल जस्ट शो यू। देखिए, a sitting judge of Madras High Court was denied entry into the Tamil Nadu Cricket Association, वो भी गवर्नमेंट का है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब एट शेपॉक, हाँ शेपॉक स्टेडियम जो है वहाँ, ऑन फ्राइडे। रीजन, ही वॉज वियरिंग अ धोती। चेन्नई, इट कुड गो डाउन एज द वर्स्ट पब्लिसिटी फॉर द धोती कंसिडर्ड अ नेशनल एंटायर इन तमिलनाडु। देखिए, ये है जुलाई 2014 का बात। जस्टिस डी हरिपरंतमन, a sitting judge of Madras High Court, was denied entry into them because he was wearing a dhoti. चेन्नई क्लब turns away judge for wearing धोती। 12 जुलाई 2014 का घटना है, 10 साल हो गया। Considered a necessary, sitting judge, बताइए, sitting judge था, भी नहीं रिटायर्ड, ऑफ हाई कोर्ट was denied entry into the Tamil Nadu Cricket Association club at when Justice D alighted from his red beacon, लाल बत्ती की गाड़ी में थे, club at the premises to participate in a book release function organized by a former high court judge. He was least prepared for the reception. जो वहाँ एक इवेंट हो रहा था बुक रिलीज का, जो पुराने हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज ने रखा था, उसमें उनको बुलाया गया था और वो उसमें पार्टिसिपेट करने आए। जब वो अपनी लाल बत्ती गाड़ी से उतरे, when TOI contacted Justice Hariparantham, confirmed and said former acting Chief Justice of Madras High Court, Justice T.S. Arunachalam, authored a book, Legal Fraternity Embrace Me. Former Chief Justice of Gujarat High Court, Gokula Krishna, released it, and former Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Justice R. Ratnam, received the first copy. I was invited. I went to the venue at 5:25 p.m. I wore dhoti and shirt. I was denied entry, saying unless I wear pants, I could not be permitted entry. Office bearers of the club did not respond to calls and text messages from TOI. A club clerk and guard informed me that I would not be allowed to enter premises as I am wearing a dhoti.
They told me they had clear instructions from the office bearers that their rules did not permit anyone wearing anything other than the prescribed dress. I politely told them that it is all right for a club to have a dress code for its members, but it cannot be imposed on guests visiting the premises at the invitation of members. Otherwise, the club should not give permission for functions involving non-members. But it was no use as they could not decide. इन्होंने भी बात कहा कि भाई आपके मेंबर्स के लिए वो रूल है, ठीक है, लेकिन जो मेंबर्स फंक्शन कर रहे हैं और उसमें गेस्ट्स को बुला रहे हैं तो उन पर ये रूल लागू करना ये उचित नहीं है. The British rulers prescribed dress codes in the club started by them. It is very unfortunate that even after independence, the same dress code is being continued in the clubs and our traditional dress is prohibited. Two other senior R. Gandhi and J.R. too suffered similar reception. When asked about incident, Gandhi said at least 5 clubs in the city, Gymkhana Club, Madras Club, Boat Club, Madras Cricket Club and Tamil Nadu Cricket Club Association still had rules denying entry for people wearing dhoti. The Tamil national dress is not respected in these places, but on Friday evening I did not protest because the function was organized by friends and many of the office bearers of the club too are my friends. इन्होंने कहा प्रोटेस्ट नहीं किया, हमारे दोस्त लोग फंक्शन किए थे और वहाँ के जो क्लब के भी जो ऑफिसर्स हैं वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता था. In 1980s, eminent jurist and former Justice V.R. Krishna Iyer too faced the same ignominy in a club. An angry Justice Iyer wrote in the visitors book that he was an Indian and that he was proud to wear dhoti. Describing the denial as a shame, he said he would never ditch the dhoti for another dress to enter the premises. ने कहा कि मैं कभी कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनूंगा किसी क्लब में जाने के लिए इस ड्रेस को छोड़. वो क्या वर्ड था? रेड बेकन. रेड बीकन. बीकन मतलब लाइट. हाँ, रेड. रेड बीकॉन कहते हैं लाइट को. हाँ हाँ, रेड. रेड बीकन लाल बत्ती. BEACON. BEACON. बीकन लाल बत्ती. ओके, सो देखिए The practice of untouchability is one of the crudest manifestations of inequality. कहा जा रहा है कि ये छुआछूत की जो परंपरा है ये सबसे वाहियात तरीके से जो भेदभाव का एक नजर आता है रूप वो है. जो सबसे वाहियात रूप में नजर आता है भेदभाव वो है छुआछूत की परंपरा. दिस हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी. इसको समानता के अधिकार के तहत इसको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field. उसी तरह इसी अधिकार समानता के अधिकार के तहत कहा गया है कि जो सरकार है, राज्य है, वो किसी व्यक्ति पर कोई तरह का टाइटल पदवी नहीं देगा एक्सेप्ट फॉर एक्सीलेंस इन मिलिट्री और एकेडमिक्स. जो मिलिट्री में लोग जो है कुछ अच्छा करते हैं उनको कुछ टाइटल दिया जाता है और जो उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग एक्सीलेंट करते हैं उनको कुछ टाइटल जैसे डिग्री दिया जाता है या ये सब उपाधि दिया जाता है, MA BA PhD डॉक्टर सर जो भी है वो शिक्षा और एक मिलिट्री फील्ड में. उसके अलावा किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा कि उसको कोई विशेष बाकी से कर. देखिए ये IAS जो लिखता है सब कोई नाम के आगे वो लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन उसको भी लोग हाईजैक कर लिया है कि कोई बोलने वाला है नहीं. प्रवीण कुमार IAS हैं, चंद्रशेखर सिंह IAS, ये IPS. वो IPS अब वो टाइटल की तरह लोग यूज करने लगे हैं. ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड. नो पर्सन कैन राइट हिज डेजिग्नेशन बिसाइड्स हिज नेम एक्सेप्ट इन मिलिट्री एंड फॉर एजुकेशन. बट लाल बत्ती आजकल कोई भी लाल बत्ती लगा लेता है, कोई भी ये लगा लेता है. बीच में रोका गया था उसको, ठीक है. कोई भी अपना जो है स्पेशल साइन बोर्ड लगा लेता है, नाम लिखवाएगा कि हाँ ये सरपंच आ रहे हैं, गाड़ी पर सरपंच लिखा हुआ.
दिस इज ऑल रॉन्ग। thus right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens। तो ये समानता का जो अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, यही जो है भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाने की कोशिश करता है। इसके सभी नागरिकों को एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इज्जत, एक जैसा सबको इज्जत हो, ऐसा करने की कोशिश करता है और एक सच्चा लोकतंत्र बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज करके आइए। है हाँ।